Good morning and welcome everyone to this session on Mains Answer Writing Guidance Program, Session 2 for Test Paper 1. मेंस का जो टेस्ट 1 हुआ था उसके ऊपर ये सेशन है हमारा. कल हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था. आज सेकंड क्वेश्चन ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर डिस्कशन ऑन how far do you agree with the viewpoint that position of the parliament in India has declined? Give arguments in support of your answer. 10 marks का है. 150 words में इसे कैसे conclude करें? Some of you had a doubt yesterday, right? So I can give you the key points. Approach क्या होनी चाहिए? Introduce the answer by start the introduction of the answer by writing about India's parliamentary system. Give arguments as far as declining standards of Indian parliament are concerned. ठीक है, declining standards of Indian parliament are concerned. Provide suggestions for strengthening. This is the most important part. Many people would stop here, okay, or they would overemphasize over here. What we can do is just to demonstrate you weaknesses हैं, ठीक है. आप अपने माइंड में या अपने नोट्स में कुछ इस तरह से इसको कैटेगराइज या ऑर्गेनाइज करके चल सकते हो. प्रॉब्लम्स विद द पार्लियामेंट. Problems in the parliamentary functioning could be one of the headings. Problems in the parliamentary functioning. Okay. Problems, disruptions. इंक्रीजिंग नंबर ऑफ डिसरप्शंस. ठीक है, डिसरप्शंस लिख दिया मैंने शॉर्ट में. फिर दिस इज क्वाइट विजिबल. द डिसरप्शंस, द हार्म कॉज्ड बाय डिसरप्शंस इज क्वाइट विजिबल. वी आर नॉट गोइंग टू बीट अराउंड द बुश कि पहले डिसरप्शंस लिखें. दैट डिसरप्शंस बाय द ऑपोजिशन पार्टीज आर इंक्रीजिंग ऑफ लेट. नो, डिसरप्शंस, द लॉस ऑफ टाइम, द हार्म कॉज्ड बाय और द लॉस ऑफ टाइम caused by these disruptions is quite visible in disruptions is quite visible in the lesser number of bills being passed by the parliament all these years, in the last few years. ठीक है, कुछ इस तरह से हम एक के साथ हमने डिसरप्शंस को जस्टिफाई कर दिया कि डिसरप्शंस हो रही हैं. हम देख सकते हैं इन द नंबर ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ लेसर नंबर ऑफ बिल्स बीइंग पास्ड बाय द पार्लियामेंट. ठीक है, P encircled P in our classes is going to be for parliament, right? फिर उसके बाद और क्या चीजें हो रही हैं? लेसर नंबर ऑफ डेज. डिसरप्शंस यहाँ पे एडजर्नमेंट हो सकती है. पीआरएस का डेटा या लोकसभा का खुद का डेटा दे सकते हो जिसमें लिखा है कि कितनी बार एडजर्नमेंट हुई, राइट? लेसर नंबर ऑफ डेज और सेशंस. ठीक है, लेसर नंबर ऑफ डेज फॉर विच पार्लियामेंट इज मीटिंग. तो इनके सामने आपके पास डिसरप्शंस के सामने आप लिख सकते हो कि डिसरप्शंस को कैसे अवॉइड किया जा सकता है. ठीक है, दैट आई विल डेमोन्स्ट्रेट हियर इन जस्ट 5-10 minutes. तो lesser number of dates for which the parliament is meeting. Productivity has gone down, number of days have also gone down, right? और कोई मेजर प्रॉब्लम जो तुम्हें लगती हो, डिसरप्शंस हो रही हैं, लेसर नंबर हैं. अब इसी में से जो फॉर्डर मटेरियल दिया है, डिक्लाइन इन द कल्चर ऑफ लेजिस्लेटिव स्क्रूटिनी, दिस कैन बी द थर्ड पॉइंट एंड वी हैव गिवन द डेटा आल्सो. मेजॉरिटी ऑफ द बिल्स आर बीइंग पास्ड बाय द पार्लियामेंट थ्रू अ वॉइस वोट. ठीक है, ineffective scrutiny, decline in the culture of legislative scrutiny can be the third point. Now, insofar as if we would be following this phenomena, weakened opposition, leader of opposition was not there, right? अब इसी के juxtapose, इसी के just opposite, I would expect you to write the solution also in your notes. When you follow this pattern, problem है, सबको पता है, we have to be solution oriented. Solution क्या है इसका? कि अगर हम एक रूल्स, लोकसभा के रूल्स को अमेंड कर दें, इफ वी अमेंड द रूल्स ऑफ लोकसभा एंड वी पुट अ कंडीशन देयर दैट
that this leader of opposition has to be there. Leader of opposition, if one single party is not able to get the strength, required number of 55 MPs, then somebody else should be given. Okay, and extra time should be given, some more time should be given to the opposition in order for them to discuss issues, right? Suggestions for strengthening, legislative impact assessment होना चाहिए, codification of privileges होना चाहिए, parliamentary committee की reforms होनी चाहिए, mandatory attendance होना जरूरी है, जो कि अभी नहीं है, right? Then we have to talk about the parliamentary calendar thing that we had talked about yesterday. We have to write here, एक तो दो तीन चीजें जो मैंने कल बताई थी उनको रिपीट ही कर रहा हूं. कैलेंडर फॉर पार्लियामेंट, एनुअल कैलेंडर ऑफ इवेंट्स, एनुअल कैलेंडर ऑफ इवेंट्स फॉर पार्लियामेंट. Need to ensure the independence of the chair. ठीक है. थर्ड, नीड टू इंश्योर द इंडिपेंडेंस ऑफ द चेयर, राइट? चेयर का मतलब स्पीकर और चेयरपर्सन राज्यसभा, स्पीकर लोकसभा, चेयरपर्सन. देन रिफॉर्मिंग एंटी डिफेक्शन लॉ. हम सिंपल सॉल्यूशंस ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है? नो हार्म इन राइटिंग इन दिस वे. सॉल्यूशंस अगर हम लगते हैं तो थोड़ा सा ब्लंट लगता है कि भाई सॉल्यूशन सीधा ही लिख दिया. हम इसको ये भी कर सकते हैं कि द अबव lacunae, the above problems in the functioning of parliament could be reformed with the help of if the following suggestions are could be overcome if the following suggestions are implemented, right? Yes Akash, you should watch it and you should write the answer. देखो कल मैंने एक छोटा सा मेल तुम्हें आ जाएगा जिसमें रोड पे जब तुम चलते हो ना वहां पे लिखा होता है बेटर लेट देन नेवर, है ना? एक्सीडेंट ना हो जाए, लिखा रहता है ना ट्रक के पीछे, दुर्घटना से देर भली. लेकिन यूपीएससी के आंसर राइटिंग का या मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का जहां तक क्वेश्चन आता है ना, वहां पे ये है बेटर नेवर देन बीइंग लेट. लिखो ही मत फिर उससे बढ़िया, समझ रहे हो ना? मैं उसको ट्विस्ट कर रहा हूं स्टेटमेंट को. द सूनर यू स्टार्ट राइटिंग द बेटर इट वुड बी फॉर यू. माई कोट इज बेटर नेवर देन बीइंग लेट इन आंसर राइटिंग. बाद में शुरू करोगे प्रीलिम्स के बाद, इससे बढ़िया लिखो ही मत, पेपर ही मत दो, तैयारी ही मत करो, सिंपल सी बात है, राइट? किसने बोला था कॉल करेंगे 20 मिनट में? कौन से नंबर पे कॉल किया था आपने? 1 मिनट रुक जाओ. ओके वो तो आकाश, वो मैसेज मैंने पढ़ा था आपका, बट आपने टेस्ट ही नहीं दिया ना, तो वो तो चीज़ रिजॉल्व हो गई थी. आपने बोला था कि टेस्ट सीरीज अटेंड, आप क्लास अटेंड करोगे. एनीवेज विल गेट इट रिजॉल्व. रिफॉर्मिंग द एंटी डिफेक्शन लॉ. okay, need to reform the anti defection law so that
the MPs are allowed to vote. MPs are allowed to vote as per their conscience or volition. वॉल्यूशन मत यूज करना, एज पर देयर विल, सिंपल वर्ड्स यूज करने हमें, एज पर देयर विल, एक्सेप्ट ड्यूरिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन. ठीक है, जहां पे सरकार के गिरने का सवाल आ जाए. तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ एज द वॉइस ऑफ इंडिविजुअल. यहां पे एक प्रॉब्लम ये भी है कि वॉइस ऑफ इंडिविजुअल एमपीज इज बीइंग क्रिपल्ड, उनकी आवाज को दबाया जा रहा है. ठीक है, तो इस तरह से. और कल परसों में हम क्या करेंगे कि कल तो आपकी ओरिएंटेशन क्लास रहेगी जो 2022 के स्टूडेंट्स हैं. परसों हम ये करेंगे कि किसी एक स्टूडेंट का जो सबसे अच्छा आंसर होगा और जो सबसे बुरा आंसर होगा, नेम को हाइड करके वी विल बी इवैल्यूएटिंग द क्वेश्चन आंसर हियर इटसेल्फ. ओके, वॉइस वोट को कम करना है. वॉइस ऑफ इंडिविजुअल एमपीज जिसको दबाया जा रहा है, वॉइस ऑफ इंडिविजुअल एमपीज needs to be freed from the shackles of, or needs to be freed from the burden of anti defection law. सिंपल वर्ड, शैकल्स होता है जंजीरें. अब यहाँ पे शैकल्स लिखोगे वो नहीं समझ में आएगा एग्जामिनर को, तो मार्क्स चले जाएंगे. नीड्स टू बी फ्रीड फ्रॉम दी रेगुलेशंस ऑफ और बर्डन ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ, वो समझ जाएगा एग्जामिनर. ठीक है, तो वॉइस वोट जो इंक्रीजिंगली यूज हो रहा है उसको नहीं. फिर रिवाइविंग द रोल ऑफ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटीज. ठीक है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटीज को फर्स्ट एआरसी ने काफी अप्रिशिएट किया था. पहले 17 पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटीज होती थी, फिर 24 कर दी गई. लेकिन इन द रीसेंट पास्ट वी सी दैट एक और क्वेश्चन बनता है जो थोड़ा डायनामिक है. डू यू थिंक दैट, प्लीज राइट डाउन, डू यू थिंक दैट पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटीज आर मीटिंग द सेम फेट एज पार्लियामेंट इटसेल्फ? इसको यूपीएससी के अंदाज में फ्रेम कर सकते हैं हम. आर सेड टू बी अ माइक्रोकॉज्म. माइक्रोकॉज्म होता है मिनिएचर वर्जन. ठीक है, जैसे जब आप कोई फ्लैट लेने जाते हो या ड्रीम हाउस, जैसे एयर फ्लाइट कंपनी में जाते हो फ्लाइट बुक करने के लिए, तो वहां पे एक छोटा सा जहाज रखा होता है. ठीक है, तो वैसे ही पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटीज आर सेड टू बी द माइक्रोकॉज्म ऑफ पार्लियामेंट इटसेल्फ. राइट, ये जो आजकल शायराना अंदाज में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. राइट, डू यू थिंक दैट parliamentary standing committees are also suffering from the same malaise या problems, same set of problems. ठीक है, same problems लिख दिया मैंने, same set of problems as parliament itself. जस्टिफाई. ठीक है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटीज को पार्लियामेंट का ही एक मिनिएचर वर्जन कहा जाता है, माइक्रोकॉज्म कहा जाता है. क्या आपको लगता है कि पार्लियामेंट्री कमेटीज आर सफरिंग फ्रॉम द सेम सेट ऑफ प्रॉब्लम्स एज पार्लियामेंट इटसेल्फ? इन द रीसेंट पास्ट this was observed. It's not lagging at all. Is it raining in your area, Akash?
ठीक है, प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। क्या, क्यों हम इसको माइक्रोकॉज्म कह सकते हैं? दी सीट्स आर एलोकेटेड in the parliamentary standing committees. The membership is allocated on the basis of strength of the political party in the respective house. लोकसभा की जो स्टैंडिंग कमेटीज हैं उनमें कैसे मेंबरशिप दी जाती है? अगर कांग्रेस की स्ट्रेंथ 10% है तो कांग्रेस को 10% लोकसभा की जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटीज हैं उनकी सीट्स दी जाएंगी। अगर राज्यसभा में कांग्रेस की स्ट्रेंथ ज्यादा है, बीजेपी की और भी ज्यादा है, तो बीजेपी को ज्यादा सीट्स मिल जाएंगी, समाजवादी पार्टी को भी ज्यादा मिल जाएंगी। ठीक है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटीज को अब तक अप्रिशिएट किया जाता था क्योंकि बिकॉज देयर फंक्शनिंग इज अवे फ्रॉम द ग्लिटर, अवे फ्रॉम द ग्लैमर ऑफ मीडिया, सोबर डिस्कशन के लिए। दे वर नोन फॉर द सोबर डिस्कशंस, बट ऑफ लेट वी आर सीइंग दैट parliamentary standing committees members are putting up the posts related to parliamentary standing committees issues and functioning on social media. They are making the parliamentary standing committees functioning vulnerable to or accountable, vulnerable दोनों चीजें सेम है, accountable to public at large, which is what is leading to politicization of parliamentary standing committees. पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के चेयरपर्सन, आईटी की जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है उसके चेयरपर्सन है शशि थरूर। अब शशि थरूर ने क्या किया? शशि थरूर ने ये पोस्ट वगैरह डाल दिया कि आईटी कमेटी ने फेसबुक को नोटिस इशू किया है, ये सब किया है। उस वजह से बीजेपी के सारे मेंबर्स जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के मेंबर्स थे वो एकजुट होकर क्रिटिसाइज करने लगे, राइट, कि इंटरनल डिस्कशंस को आप ऐसा कैसे कर सकते हो। फिर उसके बाद इंटरनल डिस्कशंस को आप पब्लिक ग्लेयर में, पब्लिक लाइमलाइट में कैसे लेके आ सकते हो। फिर आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, another issue that cropped up was during the COVID-19 parliamentary standing committees were not allowed to function by chairperson of Rajya Sabha Venkaiah Naidu, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये सारे जो इश्यूज हैं वहां पे भी कहीं ना कहीं देखने को मिलता है मेंबर्स बिलोंगिंग टू वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटीज हु अर्लियर यूज्ड टू स्टे अवे फ्रॉम द पॉलिटिक्स ड्यूरिंग देयर डिस्कशंस इन द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी मीटिंग्स have of late started succumbing to पॉलिटिकल प्रेशर। ठीक है, अब ऑफ लेट वो लोग पॉलिटिकल प्रेशर के अंडर आते चले जा रहे हैं, जो कि गलत है, जो कि सही नहीं है। आगे चल के ये जो इनकी खूबी थी, जो इनका मेजर पॉइंट था, वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो रहा है, राइट। जो इनकी स्ट्रेंथ थी वो इनकी वीकनेस बन जाएगी। क्लियर है? एवरीबडी प्लीज से यस और नो। तो इस तरह से यू कैन डिराइव द क्वेश्चंस। अब जैसे हमने एंटी डिफेक्शन लॉ वाला पॉइंट लिखा है, एंटी डिफेक्शन लॉ इटसेल्फ कैन बी एन इशू। जो हमने यहाँ पे एंटी डिफेक्शन लॉ का रिफॉर्म की बात करी है, ठीक है, वॉइस ऑफ इंडिविजुअल एमपीज नीड टू बी फ्रीड फ्रॉम द बर्डन और फ्रॉम द रेगुलेशंस अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ। कि एंटी डिफेक्शन लॉ, या फिर ये एक छोटा क्वेश्चन बन सकता है कि वॉइस वोट की जगह बिल्स पे मशीन के थ्रू वोटिंग होनी चाहिए, बटन वोटिंग होनी चाहिए। वॉइस वोट में ये और ने में आवाज ही दब जाती है कहीं, राइट। पार्लियामेंट्री सिस्टम हैज एंड मोर ओवर द स्पीकर्स आर ऑफ अ वेरी ओल्ड एज, हियरिंग प्रॉब्लम। ठीक है, अब उनको ए ने सुनाई दिया तो दिक्कत हो जाएगी ना, राइट। नाउ कमिंग टू द अदर इश्यूज, ये क्वेश्चन अब अटेम्प्ट किया जा सकता है 150 वर्ड्स में, इफ यू हैव द मटेरियल रेडी and if you know how to combine the 2 points together.
मतलब जैसे दोनों को आप अगर किसी चीज को पहले लिखते हो फिर उसके बाद उसे जस्टिफाई करते हो डेटा साइट करके, एज एग्जेम्प्लीफाइड बाय, एज प्रूवन बाय दिस डेटा, सेम सेंटेंस में कंक्लूड कर सकते हो। जैसा मैंने बताया कि पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग में प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, एज एग्जेम्प्लीफाइड थ्रू दी lesser number of bills being passed by the Lok Sabha, right? What has contributed to this phenomena? Why the disruptions are an increasing phenomena? Live telecast एक और पॉइंट बन सकता है, लाइव टेलीकास्ट। तो एक प्रपोजल आया कि लोकसभा और राज्यसभा चैनल्स का डिलेड टेलीकास्ट होना चाहिए, क्योंकि हर एमपी एमएलए दे वांट टू स्टैंड आउट, they want to be seen back in their constituency that they were doing the hangama, they were raising the voice। कोई चुटकुले सुना रहा है, कोई पेपर स्प्रे कर रहा है, कोई पेपर टिटबिट्स को थ्रो कर रहा है स्पीकर के ऊपर, राइट? एंड इसके पीछे स्पीकर की भी गलती है। तो हम ब्रिटेन का एग्जांपल ले सकते हैं स्पीकर के चेयर के लिए। स्पीकर जो है ब्रिटेन में, ही शुड हैव रिटायर्ड फ्रॉम द एक्टिव पॉलिटिक्स, राइट? इवन दो यू नेवर रिटायर फ्रॉम द पॉलिटिक्स, एज दे से दैट वंस अ कॉप ऑलवेज अ कॉप, वंस अ पॉलिटिशियन ऑलवेज अ पॉलिटिशियन, ये भी ट्रू है। लेकिन फिर भी जो एक्टिव पॉलिटिक्स में ज्यादा नहीं है उनको आगे लाया जाता है वहां पे, राइट? स्पीकर की चेयर के लिए। हमारे यहाँ पे स्पीकर नीड नॉट इवन रिजाइन फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टी, राइट? तो ये सारी चीजें हैं। प्रिविलेजेस की बात तो खैर इसमें ज्यादा नहीं इंपॉर्टेंट है। कर्बिंग द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, ये सारे पॉइंट्स फिर एंसिलियरी पॉइंट्स हो जाएंगे, ये इतने ज्यादा जरूरी नहीं है अगर हमने ये वाले पॉइंट्स लिख दिए जो मैंने आपको बताए, राइट? दीज वंस। कैलेंडर होना चाहिए, एक सेट प्रोसेस होना चाहिए, हर पॉलिटिकल पार्टी को एक रीजनेबल टाइम मिलना चाहिए। अभी क्या होता है लोकसभा और राज्यसभा में, द टाइम इज एलोकेटेड टू द पॉलिटिकल पार्टीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ इन द लोकसभा एंड राज्यसभा। But this pattern is not working. We need to increase the strength of secretarial staff in Lok Sabha. Increase the strength, right? क्यों? क्योंकि बजट की स्क्रूटनी वगैरह के लिए एमपीज को जो सपोर्ट चाहिए। फिर मैंने आपको बताया था सपोर्ट टू इंडिविजुअल एमपीज, रिसर्चर्स सपोर्ट, फेलो रिसर्चर्स होते हैं ना, जैसे पीआरएस ने क्या किया था, लैंप करके एक प्रॉब्लम लाए थे, एक प्रोग्राम लेके आए थे, वो उसमें 25,000 आपको देने होते थे एंड दे वुड अटैच यू टू वन और दी अदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राइट? तो उसमें रिपोर्ट आने लगी कि जो लैंप प्रोग्राम था, मैंने भी 25 से 30 हज़ार भरे थे शायद कि एमपी के साथ जाके काम वाम करेंगे, राइट? सीधा क्या पता पॉलिटिक्स में एंट्री हो जाए। तो वहां पे फिर उस पर रिपोर्ट आने लगी और मेरा शक बिल्कुल सही था। वहां पे रिपोर्ट आने लगी कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट फिर उनसे क्या करवाने लगे, 2 नंबर के काम, राइट? तो मतलब उनको बोला कि पीआरएस वालों को बोला कि हमें थोड़ा सा अच्छा मैच्योर आदमी दो जो थोड़ा रात तक स्टे कर ले, 11 बजे 12 बजे, ठीक है? तो उनसे क्या होता था, वो बैग वैग 2 करोड़ 3 करोड़ ट्रांसपोर्ट कराने हैं तो उनसे करवाने लग गए वो लोग, राइट? तो एक खतरा भी है कि अगर एमपीज को ऐसी सपोर्ट वगैरह सेक्रेटेरिएट, लोकसभा का सेक्रेटेरिएट मुहैया करवाएगा, अवेलेबल करवाएगा, तो हो सकता है कि एमपीज उनसे गैर कानूनन काम करवाने लग जाएं। जैसे मिनिस्टर्स के केस में एक प्राइवेट सेक्रेटरी दिया जाता है, ठीक है? सेकंड एआरसी ने यह कहा था कि मिनिस्टर को प्राइवेट सेक्रेटरी जो दिया जाता है वो प्राइवेट सेक्रेटरी ना दिया जाए। एवरी मिनिस्टर हैज गॉट प्राइवेट सेक्रेटरी। अब जैसे चंडीगढ़ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे और रेलवे मिनिस्टर बन गए थे, कौन? पवन बंसल। तो अपने पवन बंसल ने क्या किया कि चंडीगढ़ कैडर के, अगमुट कैडर के एक आईएएस ऑफिसर थे राहुल भंडारी, तो उन्होंने राहुल भंडारी से 90 लाख रुपए ट्रांसपोर्ट करवाना, ये सब रिश्वत वाला काम करवाना शुरू कर दिया। तो सेकंड एआरसी ने ये कहा था, इस हादसे से पहले, इस करप्शन स्कैंडल से पहले सीबीआई ने उनको अरेस्ट कर लिया राहुल भंडारी को, फिर बाद में वो रिहा हो गए, वो सब अलग बात है। तो सेकंड एआरसी ने ये कहा था कि मिनिस्टर्स शुड नॉट बी अलाउड टू हैव आईएएस ऑफिसर्स एज देयर प्राइवेट सेक्रेटरीज, ठीक है? तो प्राइवेट सेक्रेटरी आईएएस लगता है तो आईएएस पॉलिटिसाइज हो जाता है। ठीक उसी तरह से अगर हम एमपीज को इंडिविजुअल रिसर्च फेलोज देंगे कि जो उनके लिए रिसर्च करेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ लाइजनिंग करेंगे, लाइजिंग करेंगे, लाइजिंग करेंगे, तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगी कि वो कहीं को ऑप्ट हो जाएंगे। एमपी के लिए रिसर्च कम करेंगे, खर्च ज्यादा करेंगे, कमाई ज्यादा करेंगे, ठीक है, हफ्ता वसूली ज्यादा करेंगे। तो ये सारी चीजें ना हो जाएं, इसका एक खतरा है। बट हैविंग सेड दैट, we should cut down on their other expenses, not the salaries,
but we should provide them the researchers support. Lok Sabha can have its own secretaries, और वो सारे पेपर सेक्रेटेरिएट में जो एम्प्लॉयज़ होंगे, यूपीएससी के लोग हों, पब्लिक पॉलिसी में जो डिप्लोमा कर सकें, वो सारी सपोर्ट इंडिविजुअल एमपीज़ को इंडिया में कम मिलती है. ब्रिटेन में हर एमपी को 4 या 5 सपोर्ट स्टाफ के लोग दिए जाते हैं. ये वो सपोर्ट स्टाफ नहीं चाय पिलाओ पानी पिलाओ, नहीं, पेपर्स पढ़ के, न्यूज़पेपर्स के थ्रू ब्राउज थ्रू करके एमपी को ये जो है अवेयर कराया जाता है, अवगत कराया जाता है कि ये पॉइंट्स हैं जो आप पार्लियामेंट में अगले सेशन में रेज कर सकते हो, राइट. तो ऐसी सपोर्ट हमारे यहाँ नहीं है, इसलिए जुमलेबाजी और डायलॉगबाजी और कविताएं ज़्यादा सुनाई जाती हैं, राइट. तो ये चीज़ें कम हो जाएंगी. अब आगे चलते हैं, काफ़ी पॉइंट्स हमने इस पर देख लिए. पार्लियामेंट्री कमेटीज़ की जो फंक्शनिंग है वो चलती रहनी चाहिए, उसमें स्पीकर की मंजूरी वगैरह नहीं चाहिए, होनी चाहिए, और एक हद तक उनको ऑटोनमस करने की ज़रूरत है. तो ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी वाले क्वेश्चन में भी ये पॉइंट आप ऐड कर सकते हो कि फॉर एवरी पिकिंग अप एवरी फेदर एंड एवरी लीफ दे शुड नॉट बी रिक्वायर्ड टू सीक द परमिशन ऑफ द स्पीकर, राइट. Now coming to this question, in what ways Indian constitutional framework goes beyond the Western notions of liberty and equality? Write in brief about the preamble where the notion of liberty and equality is mentioned in the constitution. Discuss how the Indian version of equality and liberty goes beyond the Western construct. ठीक है, Western notions. अब देखते हैं इसको हम क्या क्या लिख सकते हैं. Preamble of Indian Constitution provides for ideals like liberty and equality, in many ways seen as much more progressive as compared to the US version equality. ठीक है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में it implies the absence of special privileges. हम US के वर्जन से कंपेयर कर रहे हैं. Please remember, equal protection of laws in equal circumstances is a part of Article 14 in India. This was reinterpreted. This was done after Supreme Court reinterpreted Article 14 of the Indian Constitution, right? Indian version of equality, the preamble secures to all the citizens of India equality of status and opportunity and encourages equal respect between the communities. Since India is a land of multiple cultural communities, unlike Western nation, therefore it was important to ensure that no one community systemically dominates the others. ठीक है, इसलिए हमारे यहाँ पे इक्वालिटी की नोशन को हमने थोड़ा और ब्रॉडली डिफाइन किया है. इक्वालिटी से रिलेटेड सिर्फ एक आर्टिकल नहीं है. द फैक्ट दैट वी हैव आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18 टॉकिंग अबाउट वेरियस डायमेंशंस ऑफ इक्वालिटी. Not only this, to promote and protect the religious equality, we have ventured into secularism also. ठीक है, यू कैन कनेक्ट दिस ऑल्सो कि रिलीजियस इक्वालिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए आर्टिकल 29 और 30 माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को अपना ड्यू प्रोपेगेशन और प्रमोशन करने के लिए और भी चीज़ें दी गई हैं, राइट. बाकी इक्वालिटी के हमें क्लोज रहना है, हमें फिर उसमें नहीं चले जाना. We should refrain ourselves from venturing into Article 29 and 30 beyond this point. Just mentioning of these articles, the fact that Indian Constitution has dedicated not only Article 14, the generic version of equality, but it has went further to capture every dimension of equality. Article 15, equality in general public life. Prohibition of discrimination on the basis of religion, race, caste, sex, place of birth. You need not elaborate because there is a word limit, but you should be knowing all this. Employment, equality in public employment, untouchability, another dimension of equality or inequality, right? Abolition of titles, again a kind of endeavor by the constitution makers. There is a telegram group. Akash, good morning बच्चे, आप कब आए हो? You should be regular with it, though we are giving you the flexibility to attempt the questions anytime, but anytime doesn't mean कि पता ही नहीं हो कुछ आपको कोर्स के बारे में, है ना. तो एक बार जो कोर्स पेज है इसके ऊपर जाके देखोगे, वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पे सारे PDF PPT की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है. और इसी क्लास के नीचे भी इस कोर्स का जो डैशबोर्ड है उसके सामने भी आपको PDF और PPT मिल जाएगी. Somebody please help him out. ओके, तो वेस्टर्न नेशन में
उन्होंने क्या किया है, इक्वालिटी को जेनेरिक वे में मेंशन किया है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। ज़्यादातर कंट्रीज में इक्वालिटी बिफोर लॉ को फॉलो किया जाता है, बट हमारी कंट्री में इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज इन इक्वल सर्कमस्टांसेस को फॉलो किया जाता है। गरीब और अमीर के बीच में जो डिफरेंसेस हैं उनको ध्यान में रखते हुए, मेजॉरिटेरियन रिलीजन और माइनॉरिटी रिलीजन में जो डिफरेंसेस हैं उनको ध्यान में रखते हुए, राइट। ठीक है, नाउ राइट टू रिलीजियस कम्युनिटीज, तो लिबर्टी पे आते हैं। लिबर्टी मीन्स द एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स on the activities of individuals and at the same time providing opportunities for the development of individual personalities. Indian liberty, the preamble secures to all the citizens of India liberty of thought, expression, belief, faith and worship. So article 29, 25, 26, 27, 28 ये worship वाली जो religious लिबर्टी है उसको भी हमें प्रदान करते हैं। यू कैन स्टार्ट योर ओन रिलीजन, यू कैन डिमांड अ सेपरेट रिलीजन इफ यू आर अ पार्ट ऑफ अ पर्टिकुलर सेक्ट, जैसे कि लिंगायत्स ने अपना रिलीजन डिमांड किया। लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, यू कैन पेंट द कार्टून्स, यू कैन स्केच द कार्टून्स ऑफ इवन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। Practically this is not possible these days, don't try to be Ravish Kumar etc. You have got the liberty to express the views of the other person, right? Your own liberty is fine, but you have the liberty to express the views of other person. रविश कुमार सर क्या करते हैं, मैग्से से विनर हैं, तो we have to respect him. I otherwise personally respect him a lot, but क्योंकि उनको ये कहा जाता है कि एंटी बीजेपी हैं, इसीलिए मैग्से से अवार्ड वगैरह ऐसे तो मिल नहीं जाते, ठीक है। वो क्या करते हैं, किसी और की ओपिनियन को उछालते हैं, to be on the safer side of section 124A, सेडिशियस चार्जेस ना लग जाएं उनके ऊपर, या अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के चार्जेस नहीं लग जाएं। वो क्या करते हैं, इंडियन एक्सप्रेस में छपे इस एडिटोरियल का ये कहना है कि इस सरकार ने ये किया है। अब फंसेगा कौन, इंडियन एक्सप्रेस वाला, राइट। सो लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेसिंग द व्यू पॉइंट ऑफ अदर्स। लाइव मिंट में छपी एक रिपोर्ट का ये कहना है, दिस इज हाउ ही सेज इन हिज satirical style, right? So this is what is unique to India. Yes, you can. While giving the example in the bracket, you can write. Okay, so Indian liberalism is linked to social justice. The best example of this is the provisions for reservation, the provision for reservation in the public jobs and of seats in the legislatures for scheduled caste and scheduled tribes in the constitution. The makers of the Constitution of India believed that mere granting of the right to equality was not enough to overcome age-old injustices suffered by these groups or to give the real meaning to the right to vote. Liberty हमारी कंट्री में किस फॉर्म में दी गई है, यू हैव अ लिबर्टी नॉट टू वोट इवन, ओके, राइट नॉट टू वोट इज इम्प्लिसिट इन द राइट टू वोट एज वेल। सो ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। हमारे यहाँ पे लिबर्टी को सोशल जस्टिस के प्रिज्म से, पर्सपेक्टिव से भी देखा जाता है, राइट। लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीफ। अगर मैं ये मानता हूं कि भगवान है, तुम मुझे रोक नहीं सकते। अगर मैं ये मानता हूं भगवान नहीं है, तुम मुझे रोक नहीं सकते, सरकार मुझे रोक नहीं सकती। सो दिस इज समथिंग दैट इज यूनिक टू इंडिया। ये चीजें यूएस में भी हैं, ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है कि वर्शिप वगैरह वाली जो चीजें हैं वो थोड़ा हमने कॉन्स्टिट्यूशनली फंडामेंटल राइट्स के थ्रू प्रोटेक्ट करी हैं, विच इज नॉट द केस इन अदर कॉन्स्टिट्यूशंस। ओके, तो ये टॉपिक को हम कहाँ रख सकते हैं, इस टॉपिक को हम रख सकते हैं कंपैरिजन ऑफ द provisions of Indian Constitution with the other constitutions, right? Comparison of Indian Constitution में। अच्छा, अब इसमें एक और डायमेंशन अगर हम ऐड करें, क्या लिबर्टी और ये क्वेश्चन सिंपल था, क्या लिबर्टी और इक्वालिटी रिलेटेड हैं? Do they mutually reinforce each other? Demonstrate.
Please try to think around this statement of mine. Do they mutually reinforce each other? How? How do they do? Can you please briefly comment on this? I just want you all to brainstorm on it. So this is my only concern, right? Without liberty, equality cannot be there. Without equality, liberty cannot be there, right? Yes, so these things are there. Now, ठीक है, liberty is required to express, to achieve equality. Equality is required to achieve or enjoy your liberty. If one community is dominant upon you, if one community is dominant upon another, the suppressed community, the dominated community will not be able to have liberty, right? फिर क्या होगा? बकरीद नहीं मनाई जाएगी, रामलीला ही चलती रहेगी. रामलीला नहीं मनाई जाएगी, बकरीद ही चलती रहेगी. वाइसी वर्सा भी हो सकता है, ठीक है? अगर आपके पास बेलगाम लिबर्टी है, इक्वालिटी नहीं है, तो एक कम्युनिटी की एंजॉयमेंट हो गई, दूसरे की नहीं होगी, राइट? इसलिए हमारे यहां पे जो कॉन्सेप्ट है ना, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज इन इक्वल सर्कमस्टांसेस, वो ऊंच नीच के फासले को, वो गैप को कवर कर लेता है. क्लियर? Can we cite articles of cooperatives here? No. NGOs का कर सकते हो, cooperatives का कुछ हद तक कर सकते हो. Yes, you can cooperate, you can establish the cooperatives for any legal purpose. ठीक है? Like the fact that there are 30 lakh plus voluntary organizations in India, right? So ours is a free culture. इसका एक रिलेटेड क्वेश्चन जो यूपीएससी ने पूछा है लिबर्टी का, लिबर्टी से रिलेटेड है. आर वी अ सॉफ्ट स्टेट? वी आर सो लिबरल अ कंट्री दैट नेगेटिव एलिमेंट्स, द रॉग एलिमेंट्स, दे रन अ मॉक, दे मेक अ मॉकरी ऑफ आवर लीगल सिस्टम, ऑफ आवर कल्चर ऑफ लिबर्टी. वो लोग क्या करते हैं? हमारे इसका नाजायज फायदा उठाते हैं. बीइंग अ सॉफ्ट स्टेट, इंडिया इज समटाइम्स टेकन फॉर अ राइड, राइट? तो ये चीजें हैं. अब आते हैं जुडिशियल रिव्यू डॉक्ट्रिन. इज दिस फाइन गाइज? ये क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट करने वाला है, बिल्कुल स्टैटिक है. ऑल दैट यू गॉट टू डू इज यू नीड टू हैव सम रीसेंट एग्जांपल्स, जैसे लिंगायत का है, कोऑपरेटिव्स का है, एनजीओज का है, राइट? अब इसमें क्रिटिकल एलिमेंट आना चाहिए. क्रिटिकल एलिमेंट ये आना चाहिए, दो इन थियोरी, इवन दो इन थियोरी these things are very nice to read, है ना? Even though in theory we are very firm on the notions of liberty and equality,
We are having uniqueness in terms of having these notions of liberty and equality in our country. But when it comes to practical implications, the onslaught, the excessive usage of provisions like section 124A, okay, the Reuters scenario, रॉयट्स का जो सिनेरियो हमारी कंट्री में देखने को मिलता है, that negates the very essence of, that goes against the very essence of the theoretical notions of liberty and equality which are enshrined in our constitution. आप इससे ये दिखा रहे हो कि आप सिर्फ बुरिश, अगेन वही घिसा पिटा आंसर नहीं लिख रहे हो, है ना, आप साथ में उसमें चीजें डाल दे रहे हो, थोड़ा सा टॉपिंग्स ऑफ द पिज्जा टाइप्स, कि आपने ये चीजें आपको पता है और आप इसको इंटरलिंक अच्छे से कर रहे हो, ठीक है। बैन ऑन मूवीज, विश्वरूपम हो या कोई और मूवी हो, बैन लगाया जा रहा है। फिर रीसेंट लॉज, व्हाट्सएप को कटेल, व्हाट्सएप पे जो इंटरमीडियरी रूल्स हैं, आईटी इंटरमीडियरी रूल्स हैं, या फिर अमेजन प्राइम सीरीज के बाद जो कंट्रोवर्सी हुई, उसके बाद नेटफ्लिक्स जैसे वेब सीरीज के लिए जो रूल्स लाए गए, राइट, वो सारी चीजें दे नेगेट दी थियोरेटिकल प्रिंसिपल्स। आपने जब थियोरेटिकल लिखा है, क्रिटिकल एनालिसिस नहीं लिखा, बट हर क्वेश्चन में थोड़ा सा करना पड़ेगा, राइट। अपने आप से वो कंक्लूड करते टाइम आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, एक दो लाइन्स ही। बट द नेगेटिव एस्पेक्ट्स, बट द ऑफ लेट इन द रीसेंट टाइम्स वी आर विटनेसिंग some negating factors against the theoretical notions of liberty and equality. For instance, the excessive usage of section 124A, okay, then frequent bans on movies and web series, and the latest IT rules. Clear? ठीक है, तो हमें ये थियोरी और प्रैक्टिस के बीच में थोड़ा सा दिखाना होगा। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन 4, जुडिशियल रिव्यू डॉक्ट्रिन इज हेल्पफुल इन स्ट्रेंथनिंग कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। जुडिशियल रिव्यू कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को अपहोल्ड करने में, स्ट्रेंथन करने में मददगार है। कैसे हेल्पफुल है, कैसे? इंट्रोड्यूस द आंसर बाय ब्रीफली डिफाइनिंग द जुडिशियल रिव्यू एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। डिस्कस हाउ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी कैन बी स्ट्रेंथन्ड बाय जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जैसे सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमला जजमेंट में, हदिया जजमेंट में और वेरियस अदर जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट हैज फ्रीक्वेंटली साइटेड, ट्रिपल तलाक में सुप्रीम कोर्ट साइटेड द फ्रेज और द वर्ड constitutional morality. Supreme Court had said in right to privacy also and in Sabarimala judgment also that the only morality that should prevail is constitutional morality. This remark of the Supreme Court was against religious morality. When the religious morality goes against a particular section of society, be it women or be it Muslims or be it anyone, then we need to take the shelter under कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, राइट। सो सुप्रीम कोर्ट ने इस टर्म का ये यूज किया है। तो जुडिशियल रिव्यू डॉक्ट्रिन इसमें हेल्प करता है। इसका मतलब क्या है क्वेश्चन का, पहले ये समझो। यानी कि ये कह रहे हैं कि अगर जुडिशियल रिव्यू ना होता तो शायद ये इतना स्ट्रांग ना होता हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी वाला पार्ट, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी उतनी अच्छे से अपहोल्ड ना की जाती। क्या ये सही है? यस। कैसे सही है? मैं थ्योरी वो नहीं पढ़ाऊंगा जो लिखा है, ठीक है। कुछ चीजें खुद सोचो। सबरीमला जजमेंट, ट्रिपल तलाक जजमेंट, राइट। तो ये जजमेंट्स क्या है? ये तो सिर्फ रिलीजियस एरा की, रिलीजियस एरिया की या रिलीजियस स्फीयर की जजमेंट्स हैं। थोड़ा और सोचो। राइट टू प्रिवेसी रिलीजियस एरा से परे है ना, रिलीजियस एरा से थोड़ा दूर है। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को प्रिजर्व, मोरालिटी सिर्फ रिलीजियस मोरालिटी के अगेंस्ट नहीं है, ओवरऑल मोरालिटी है। यहां पे हम क्या कर रहे हैं, दो चीजें हैं। कॉन्स्टिट्यूशन लीगल चीजों की बात करती है, लेकिन जब हम दो चीजों को फर्टिलाइज कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को और मोरालिटी को, तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मीनिंग भी एम्पलीफाई हो जाता है और मोरालिटी भी लीगैलिज्म के रंग में रंग जाती है। मतलब समझ में आ रहा है? लीगल चीजें कभी मॉरल नहीं होती, हो भी सकती हैं। व्हाट इज मॉरल मे और मे नॉट बी लीगल। एथिक्स में पढ़ा होगा, व्हाट इज लीगल मे और मे नॉट बी मॉरल, राइट। कुछ चीजें लीगली जस्टिफाइड हैं, जैसे किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन देना, प्रिवेंटिव रीजंस के चलते किसी को डिटेन करना, बट ये इमोरल है,
किसी को आप कैसे कर सकते हो ऐसे? इलीगल नहीं है, लीगल है लेकिन इमोरल है। मतलब समझ रहे हो? दिस क्लैरिटी वुड हेल्प यू डिराइव द एग्जांपल्स, पिक द एग्जांपल्स फ्रॉम नॉट जस्ट द रिलीजियस एरिना। रिलीजियस स्फीयर में तो बहुत एग्जांपल्स हैं, राइट? सबरीमला जजमेंट है, हदिया जजमेंट है, और भी बथेरी जजमेंट्स हैं। दहेज नहीं लोगे, वो भी मॉरल है, लीगल है, राइट? एंड डाउरी प्रोहिबिशन है। तो पॉइंट ये है, हम इसके बियॉन्ड कैसे सोचें, राइट? यानी कि जुडिशरी हमें कैसे हेल्प कर रही है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को अपहोल्ड करने में, प्रोटेक्ट करने में, स्ट्रेंथन करने में। वेरियस एग्जाम्पल्स हमें देने होंगे। 2 एग्जाम्पल्स हमने रिलीजियस एरिना के देखे, फिर राइट टू प्राइवेसी। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को स्ट्रांग ही तो कर रहा है ना वो, अदरवाइज सरकार हमारा क्या करती, हमारी जो मूल डिटेल्स, जो फंडामेंटल डिटेल्स हैं, बायोमेट्रिक डिटेल्स हैं, उनको बहुत एक्सट्रीम तक ले जाके यूज करती। बच्चों के एडमिशन के लिए बायोमेट्रिक कार्ड जरूरी है, ठीक है? पानी पीने के लिए बायोमेट्रिक कार्ड जरूरी हो जाता। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारी ये नहीं कहती। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहती है? सॉवरेन। प्रियम्बल क्या कहता है? सॉवरेन। वी द पीपल ऑफ इंडिया मींस द सॉवरेन इज द सोर्स ऑफ ऑल द पावर, है ना? तो जुडिशियल रिव्यू की वजह से ही हम बच पा रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा है आर्टिकल 72, प्रेसिडेंट यदि चाहें तो माफी दें, यदि चाहें तो पार्डन ना करें, पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। बट सुप्रीम कोर्ट बाय with the help of judicial review of undue delay in not giving the pardon or not deciding on the petition for pardoning a convict, Supreme Court said undue delay। undue का मतलब क्या होता है? ड्यू होता है नैतिकता, गैर नैतिक। undue मतलब गैर नैतिक, ठीक है? मतलब उचित नहीं है, अनुचित। undue delay, उचित अनुचित क्या चीज है? मोरालिटी। अप्रोप्रिएट और इनअप्रोप्रिएट इज मोरालिटी। तो जुडिशियल रिव्यू हर एरिना का हो रहा है और इस वजह से कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी स्ट्रांग हो रही है। मतलब समझ में आया? और भी चीजें सोच सकते हो। एडल्ट्री, विमेन वॉज हेल्ड टू बी अ कीप ऑफ हर हस्बैंड, है ना? अगर विमेन किसी के साथ रिलेशनशिप रखे आउटसाइड द मैरिज, देन दैट वाज कंसिडर्ड टू बी इलीगल, बट इफ हस्बैंड इज कीपिंग द रिलेशन दैट वाज लीगल, ठीक है? इसको सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, दिस इज नॉट जस्टिफाइड, राइट? सेक्शन 377 गे राइट्स, एलजीबीटी राइट्स, तो ये विमेन और मेन को इक्वली ट्रीट करना किसने किया? जुडिशियल रिव्यू की वजह से हुआ। कस्टोडियल डेथ ऑल्सो यू कैन से, ठीक है? कस्टोडियल डेथ्स की वजह, जो भी गैर नैतिक काम हो रहे हैं, मॉब लिंचिंग, ठीक है? और अभी सुप्रीम कोर्ट का रीसेंट कमेंट ऑन सेक्शन 124A, व्हाई डू यू वांट टू रिटेन द आर्काइक ब्रिटिश एरा लॉ, है ना? सेक्शन 66A इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, राइट? अब थोड़े से नेगेटिव एग्जांपल्स लें। वी हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस, we don't have to toe the line of the question. Supreme Court in 2010 said that the food grains are rotting. Why FCI is not being allowed to distribute the food grains to one and all? It's better to distribute the food grains to the poor rather than letting them rot out in the open during the monsoon season. Supreme Court ने कहा ये बेहतर होगा कि ये गरीबों में अनाज बांट दिया जाए बजाय इसके कि इस अनाज को वेस्ट होने दिया जाए। अब यहां पे थोड़ा गलत हो जाता है। कैसे? यहां पे मोरालिटी ज्यादा हो गई, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म टुक अ बैक सीट। समझ में आया? जुडिशियोपैपिज्म, मैं इसके नेगेटिव एग्जांपल्स दे रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनना। कोई अगर जज ये कहे कि अनाज, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या कहता है? रूल ऑफ लॉ इज द फर्स्ट प्रिंसिपल। सभी को अनाज बांटोगे, क्या पता कि अदानी और अंबानी आ गए और आम आदमी पीछे रह गया। The least deserving person might take the benefit of the system. So Dr. Manmohan Singh that time said कि in a democracy run by rule of law,
observing the rule of law, in a democracy which observes the rule of law, decisions, policy making may take its own time. But when the policy arrives, it is in the best interest of everyone. है ना? तुम पॉलिसी मेकिंग में नहीं घुस सकते. जुडिशरी को कहा कि माना कि हमसे देर हो रही है, मोरालिटी के चक्कर में तुम फालतू के रिमार्क्स नहीं दे सकते. सिर्फ मोरालिटी गलत हो जाएगा. समटाइम्स जुडिशरी गोज हे वायर, जज्बात में बह जाती है. राइट? जुडिशरी जज्बात में बह जाएगी, लेकिन सरकार को जज्बात के पीछे जो बात है, जो लॉजिक है, उसको देखना पड़ता है. हो सकता है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जल्दी पास किया जा सकता था, बट कॉन्सेंसस बिल्डिंग टेक्स इट्स ओन टाइम. राइट? तो मोरालिटी, अब इस लाइन को हम कैसे लिखेंगे? Sometimes in the process of bringing about wholesome justice, or sometimes in the process of bringing about the justice in its true sense, judiciary forgets about the constitutionality. Right? होता है ना कभी कभी ऐसे, कानून जुडिशियल रिव्यू करना है इन द लाइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बट कभी कभी 2010 की रूलिंग है. ठीक है, अब आगे एक और पॉइंट सुन लो इसका. एक्सेसिव जुडिशियल रिव्यू इज लीडिंग टू, excessive judicial review is leading to intrusion into the or violation of doctrine of separation of powers. Excessive judicial review is leading to the separation of doctrine of the violation of doctrine of separation of powers. परसों तरसों के न्यूज़पेपर में था ना ये पॉइंट, राइट? कल परसों के न्यूज़पेपर में ही था ये, राइट? तो हमें ये नहीं लिखना कि हाँ अंधाधुंध शुरू हो गए, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जुडिशरी बहुत अच्छे से कर रही है, राइट? अब आते हैं जुडिशरीज ओन रिव्यू. क्या जुडिशरी अपना रिव्यू खुद कर रही है? नॉट अलाउइंग द लेजिस्लेचर टू ब्रिंग अबाउट NJAC Act. Judges appointing themselves, right? Judges are appointing themselves. In the recent past, मोरालिटी क्या है कि मैं अगर चीफ जस्टिस रिटायर हुआ हूं तो मैं राज्यसभा की सीट पे लपक नहीं लूं, लालच में नहीं आ जाऊं, राइट? Post retirement benefits. In the recent past, the judges are seen to be sitting in judgments in their own cases. Ranjan Gogoi, sexual harassment case. That is a clear-cut negation of morality and constitutionalism. If not constitutionalism, then morality. यहाँ पे judge sitting in his own case as a judge, in which he is culpable, in which he is alleged to have committed a crime, he is sitting in his own case. वो तो constitutionally भी incorrect है, morally भी incorrect है. दूसरा, a judge immediately after his retirement, right after his retirement, is getting appointed to Rajya Sabha. Though that is constitutionally correct, morally that is wrong. अब इसको कैसे आप कंसाइज करके लिखोगे? आई वुड बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स. नो नीड टू राइट द नेम ऑफ द जज. ओके, समझ में आया? Judicial review doctrine is helpful in strengthening constitutional morality when it comes to keeping a check on the other two organs of the state, parliament, legislature and the executive. But when it comes to its own responsibility, when it comes to observing the constitutional morality or strengthening the constitutional morality within judiciary itself, the judiciary's role is circumspect. Done?
क्लियर है? तो इसी तरह से धीरे धीरे से क्वेश्चंस को कवर करेंगे। अब इसको पढ़ोगे तो स्ट्रेंथनिंग के ऊपर सारा ये लोप साइडेड ये है, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू इज अ टूल, बट हमें ये आंसर्स लोप साइडेड नहीं लिखने हैं। Why am I not incorporating these points in the PPTs? Because see guys, we are investing a lot of resources in these points and all, जो भी पुल आउट करने पड़ते हैं दिन रात एक करके, राइट? अब मैं अगर उसको PPT में देता हूँ, this PPT goes to various other places. You can't even imagine, and then people literally copy paste my points and start teaching in their own funny classes, right? Yes, you can resend the answer and your answer evaluated answer copies will be provided. ठीक है, तो हर क्वेश्चन में ना देखो, जैसे क्वेश्चन की लैंग्वेज है, मैं तुम्हें एक रूल ऑफ थंब बता रहा हूँ, मतलब 70% इसकी लाइन टो करो, 30% ना थोड़ा सा सोच के डिफरेंट डायमेंशन में सोचो, क्योंकि सारे लोग यही कर रहे होंगे, यही जजमेंट्स होंगी, ठीक है। ये सारा कुछ इसमें लिखा होगा, हर आंसर में होगा, 90% ऑफ द केसेस में हर आंसर में होगा। क्रिटिकल पर्सपेक्टिव तुम्हें ऐड करना है, इवन इफ द क्वेश्चन इज नॉट आस्किंग ऑफ यू, ठीक है। Okay, done guys. So this was all in today's class. धीरे धीरे से मैं कराऊंगा, लेकिन सारे क्वेश्चंस हम कर लेंगे। अगर मैं ऐसे ही पीपीटी से पढ़ दूंगा तो मेरा काम भी आसान है और तुम्हारा भी आसान है, लेकिन आगे चल के फिर मेंस में नंबर नहीं आएंगे, राइट? क्लियर टू एवरीवन? GS2 में 117, 18 तक, 20 तक नंबर चले जाते हैं, ठीक है। 123 is the highest marks I have heard of. Clear guys? So try rewriting if you want. You can rewrite your answers. Thank you guys. Bye bye. एवरेज मार्क्स जो GS2 में आते हैं 107, 108 तक आ जाते हैं, ठीक है, बहुत इजीली। उससे नीचे लाने का कोई फायदा नहीं है।